चलो नहीं करके आओ. Go and take bath. Then I will take bath and I'll give you omelette. What? Omelette. I saw the paper. Yes. Yes. Since I love you. I love you too. I'm gonna fire you. No, please, no. You, abhi aapne said I love you and you're gonna fire at me. That's so rude of you. I was just pretending. Oh my baby. चुप ना जाओ जी. We are going to Jesus. Hey? What Jesus? You're going to Jesus. school. Jesus is a God. I know Jesus is a God. But it is of my school. Yes, Jesus is a God. My How do you worship Jesus? How do you worship Jesus? My Jesus is going in my school. So मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो इतने कार्तिक और केशु रेडी होने गए. मैंने कहा मैं कोई एक नैप ले लेती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. रात को भी ना सोते हुए बहुत लेट हो गया था, और पता नहीं रात को ना, कल रात को मतलब प्रॉपर नींद नहीं आई, लाइक साउंड स्लीप. सो मैंने कहा चलो मौके का फ़ायदा उठाया जाए. मैंने क्विक नैप लिया, फिर फटाफट से ना यहाँ पे मैंने बात ले लिया है. आई एम डूइंग माई स्किन केयर. मौसम बहुत अच्छा नहीं है, मतलब आज फ्राइडे है और आप देख लो, मतलब बिल्कुल मेरी तो यहाँ पे फ्राइडे फीलिंग ही मर चुकी है. कितने दिन हो गए यार, धूप ही नहीं निकल के देती है यार. ऐसे 2 हफ्ते में एक बार धूप निकलेगी. इंडिया में ना मैं तरसती थी कि बारिश हो जाए. यहाँ मैं तरसती हूँ धूप आ जाए यार. In the ball pit. Excellent. Kipper and Anna went to the ball pit. Then इधर. सो यहाँ पे केशु स्कूल जाने से पहले अपनी बुक थोड़ी रीड कर रहा है. ये अच्छी बात हुई है कि इसको ना रीडिंग का शौक पड़ गया है, तो ये अगर बाहर भी जाता है ना, तो ये बाहर जाके कुछ ना कुछ बिलबोर्ड देख के रीड करने की कोशिश करता है. It's gonna be all right. चलो चलना. Keshu, if she doesn't allow, you can keep it inside the bag, okay? I cannot. Okay, fine, then don't please. अब मेरे को मैं तो टीचर नहीं हूँ ना. You should know your school rules. I don't know. I don't want You to. asked the teacher yesterday and she said yes, you can take it. Yes. Then If she said no to this. why would she say no? You get this in your golden dip also, no? Yeah. I hope we're not gonna miss the bus. You monkey boy. You monkey boy. You monkey boy. स्पेक्स ऊपर हो सकते हैं ऐसे, अगर निकल जाते हैं तो इनको ऐसे कर सकते हैं. आजा चल. So everyone look at these. So everyone look at these. We've got those new boxes. And actually we've got some new walls. Look at those. Okay, we're getting late. केशु आ जाओ, चलो अपना अपार्टमेंट बाद में सेल करना. आ जाओ. Something is wrong with this door. Oh, it's cold. चलो. नाटक नहीं बेटा. We'll get late. We'll miss the bus. I am leaving you here. Okay, don't listen to me. आजा केशु please यार. You have done 3 bad habits today. Do you know that? Only 2. Today bad is winning. No. So then you have to. How much good things? You have done only one good thing that you have. No, you have done 2 good things. That you have eaten your breakfast and you have freshened up yourself. But against that, you have done 3 bad things. You haven't been listening. We've been telling you. Okay. Now how much good things I've done? Let's see. अभी तो How much good things? अभी नहीं पता. अगर आप बस में मेरे हिसाब से बैठोगे, you will not go at the back seat. You will sit where I tell you to sit. Then I will count that thing into a good thing. How much? Then your good things will be 3. आ जाओ हाथ पकड़ो. And my bad thing will be 2. Right.
सो गाइस ये है प्रेस्टन का बस स्टेशन है यहाँ का ना, मतलब मैनचेस्टर पास में है, शॉर्ले ब्लैकपुल, तो हम ऐसे मिडिल उसमें रहते हैं। और ये सबसे बड़ा बस स्टेशन है यहाँ का। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा बिकॉज ओस जमी हुई है बिल्कुल कांच पे। तो मैं अब यहाँ पे केशु को ड्रॉप करके बस स्टेशन आ गई हूँ। एंड यू कैन सी इट्स एक्चुअली वेरी स्पेशियस, वेरी ह्यूज। आप देख लो कितना स्पेस है, मतलब मैं तो कभी कभी ना यहाँ पे केशु का से प्ले करने के लिए भी ले आती हूँ। तो इट्स क्वाइट स्पेशियस। तो मैं यहाँ से वॉक करके अपने घर जाऊँगी। माई हाउस इज़ जस्ट 4-5 मिनट्स अवे। ये एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे ये देखो स्कूल यूनिफॉर्म मिलते हैं। तो यहाँ पे सारे स्कूल की यूनिफॉर्म मिलते हैं एक्सेप्ट माई किड्स स्कूल यूनिफॉर्म इज़ नॉट अवेलेबल। ये मेरे राइट में ये सुपर मार्केट है। सो ये कुछ एशियन शॉप्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी आपको कुछ इंडियन सामान चाहिए, बर्तन वगैरह सब कुछ, कढ़ाई कुकर सब मिल जाता है यहाँ पे। तो अगर मुझे कोई ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। अदरवाइज़ एक मास सुपर मार्केट है ही, जो कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, इट्स लाइक अ बिग बाज़ार। सो ये वहाँ पे मिल जाता है। ये मेरे लेफ्ट साइड में ये बेकरी है और मेरे राइट साइड में एक फार्मेसी है। अभी ना यूके में ऐसे फ्लू वगैरह का टाइम चल रहा है बिकॉज ठंड आने वाली है। तो उन्होंने ऐसे कुछ लिस्ट गूगल पे दी है कि अगर इफ़ यू हैव दीज 7 सिकनेस देन यू कैन गो टू द फार्मेसी एंड दे विल गिव यू मेडिसिन बाय देमसेल्व्स। आज अभी तक ठंड थोड़ी कम लग रही थी, मुझे ठंड थी, बट अभी सडनली ना थोड़ी सी हवा चलने लग गई है और ठंड बढ़ गई है। और आई एम कैरिंग माई वुलन कैप इन माई बैग। तो जब मन करेगा। और पहले ना मैं यहाँ पे एक इंडियन सुपर स्टोर है वहाँ जाने की सोच रही थी, बट अब नहीं जा रही हूँ। अब मैं सोचा कल जाऊँगी, केशु को भी ले लूँगी। सो वहाँ पे सारा इंडियन सामान मिलता है एंड इट्स लाइक अ बिग बाज़ार ऑफ इंडिया। तो अभी मैंने कार्तिक को नीचे बुलाया है और मैं कार्तिक जाएंगे कॉफ़ी पीने। और यहाँ पे एक दूसरी ट्रैम खड़ी हो गई है, फूड ट्रैम। सो आई थिंक बट यहाँ पे नॉर्मली नॉन वेज ही मिलता है। सो वेजिटेरियन ऑप्शंस एक्चुअली कम है। आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा घर जाके ब्रेकफास्ट में, तो इसलिए आई एम कंटेम्पलेटिंग कि कुछ बाहर से ही खा लें। तो इसलिए ग्रेग्स जा रहे हैं। ग्रेग्स पे वो कुछ चीज़ का जो उस दिन कार्तिक खाया था वो मिल जाएगा, क्रॉज़ो मिल जाएगा एंड कॉफ़ी मिल जाएगी। तो मैं सॉर्टेड फिर दोपहर के लिए खाना बना लूँगी। सो फटाफट पहले कार्तिक को कॉल करके बुला लेती हूँ बिकॉज मैं बिल्डिंग के नीचे आ गई हूँ। सो कार्तिक आ रहा है, मैं उसका वेट ही कर रही हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, लाइक हाथ ना चिलमिला रहे हैं। बट मैं अगर ग्लव्स पहन ले रही हूँ ना तो मुझसे ना कुछ ऐसे हैंडल नहीं हो रहा है, कुछ पकड़ा नहीं जा रहा है। तो जब मैं ग्लव्स पहन ही रही हूँ, बट मुझे लगता नहीं कि आगे आने वाले दिनों में इसके बिना काम चलेगा। सो आई एम थिंकिंग व्हाट शुड आई मेक इन लंच टुडे। आई एम थिंकिंग आई विल मेक सांबर एंड डोसा। हाँ, सांबर डोसा बना लेती हूँ, आलू उबाल के। आई विल गेट बॉइल्ड आलू एंड कड़ी पत्ता और सांबर डोसा बना लेती हूँ दोपहर के लिए। यस, और टमाटर भी नहीं है, तो टमाटर आलू और कड़ी पत्ता मुझे लाना है। आई विल गेट सांबर डोसा। आ गया यार, इसमें तो फिर वो आलू ही मिलेंगे। हैं? चश्मा कहाँ है तुम्हारा? पाकेट साफ करना है, काला कपड़ा है। हाँ है ना। ये दरवाजे में ना फिर प्रॉब्लम हो गई है कार्तिक, तुमको निकालना पड़ेगा खुद से, खोल के अंदर पड़ा है इसमें। ये तो इस तो नोजी पोछी खींचो की। तो तुमको ये स्पेक्स क्लीन करने ब्राउन ग्रेइश कलर का कपड़ा है, ये नोजी क्लीन करके ऐसे ही डाल दिया। तो भाई रास्ते में चाहिए होता है। अभी हल्की ना हवा चलनी शुरू हो गई है ना। हाँ मैडम हेयरस्टाइल, मैडम मुझे हक करा था, हक करते करते मैडम हेयरस्टाइल दिख गई तो उसने बोला नो गो एंड हग योर मॉम फर्स्ट। फिर आके हक किया, फिर मैडम हेयर पर्सन से बात करता आई गॉट दिस एंड करते रहा फॉर गुड 2 minutes। ही वाज स्टैंडिंग एंड ही वाज टॉकिंग टू हर एंड देन ही वेंट इनसाइड। उसको क्या है, उसने वापस भेज दिया हेयरस्टाइल में। नहीं देन ही वेंट इनसाइड स्कूल के अंदर। हेयरस्टाइल ने वापस भेज दिया कि हमने हाँ, मुझे हक करते करते मैडम हेयरस्टाइल छोड़ के वो, तो उसने बोला गो एंड हग योर मॉम फर्स्ट। सो यहाँ पे मैं और कार्तिक आ गए हैं वापस से ग्रेग्स। कॉफ़ी और कुछ डोनट्स वगैरह खाने के लिए मन कर रहा था, फ्राइडे था, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज एक्चुअली मिसिंग इंडिया। तो मैंने कहा मुझे कुछ खाना है तो इस साइड चल ग्रेग्स चलते हैं। तो वो भी नीचे आ गया एंड नाउ वी आर हियर। तो यहाँ पे सब सॉर्ट ऑफ सैंडविचेस एंड ज़्यादातर नॉन वेज ही मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन तो ऑप्शन कम है, तो बट यहाँ पे डोनट्स वगैरह ऑप्शंस मतलब वैसे काफ़ी सारे हैं स्वीट्स में। तो बस यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, अपने कुछ खा पी रहे हैं। ये देखो अभी क्रिसमस आने वाला है ना, तो इनके सारे मग्स वैसे क्रिसमस की डेकोरेशन की प्रिंट्स हो गए हैं ऐसे मग्स इस फॉर्मेट में एंड बहुत सुंदर लग रहे हैं।
बट मुझे एक चीज़ लगती है यहाँ की ना जो कॉफ़ी लोग देते हैं ना ग्रेग्स पे, जैसे मुझे ना स्टीमी हॉट कॉफ़ी पसंद है और ये स्टीमी हॉट नहीं होती है, तो मतलब मुझे ना स्पेशली इनको बोलना पड़ता है कि प्लीज़ मेक इट स्टीमी हॉट। बाकी अगर आप प्रॉपर कैफ़े जैसे कैफ़े नीरो है या राइस करके कैफ़े है यहाँ पे जो कि बहुत फेमस है, वहाँ जाओ तो दे गिव यू प्रॉपर स्टीमी हॉट कॉफ़ी या कोस्टा पे भी, बट यहाँ पे इनको स्पेशली बोलना पड़ता है। फिर ये ना एसएनवी मार्ट करके एक ये शॉप है, सो ये हमने इंडियन। फाइनली एक ये इंडियन स्टोर और है घर के पास, थोड़ा कॉस्टली है तो इसलिए हमने सिर्फ कड़ी पत्ता हरी मिर्च लिए, और इसके जस्ट सामने सेन्सबरी है, वहाँ से हम लेने जा रहे हैं आलू, टमाटो और प्याज। तीनों असेंशियल्स ख़त्म हो गए हमारे घर में। सो अब बाकी का सामान खरीदने के लिए हम बस उस शॉप के जस्ट सामने अक्रॉस द रोड सेंसबरी है, वहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मुझे आलू चाहिए थे, आई गेस टोमेटोज़ भी चाहिए थे, बिकॉज मैं एक्चुअली आई वाज गंदी हो रही मेकिंग है वो। सांबर डोसा। तो जो भी मुझे कोई उसको बात नहीं, बनाने के लिए क्या एसेंशियल्स बनाना चाहिए ले थे लें क्या? वो हमने फटाफट हाँ, फटाफट पिक किए। देखना फ्रूट्स कौन खत्म सी हो गए थे वाली। एंड केशु को ना बनानास पसंद है, तो ये मैंने फटाफट हाँ, बनाना उठाए। यहाँ पे ये 78 78 पेंस। हाँ, पेंस का बनाना सही है है। ये। फिर उसके बाद देखो आप कितने सारे फ्रूट्स हैं, बट अभी ना ऑरेंजेस वगैरह मैं पिक नहीं करी बिकॉज ठंडी आ गई है। अनियन यार हम वो मास मार्केट से लेते हैं, बिकॉज ये वाले जो अनियन होते हैं ना बहुत तीखे होते हैं, मतलब आप सब्जी में डालो पर आप रॉ नहीं खा सकते। फिर काटे ने कुछ और वेजिटेबल्स पिक की, टोमेटोज एंड पोटैटोज ये सब पिक किए। कुकुम्बर पिक किया, आजकल ना मैं सैलेड कुकुम्बर टोमेटो आलू और सब स्वीट कॉर्न्स का सैलेड बना रही हूँ। वो बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। ये देखो ये पूरी जो शेल्फ है ना गाइस, ये पूरी ना मतलब ये पूरी शेल्फ सिर्फ नूडल्स, रेडी टू ईट नूडल्स की। आप देख लो कितने सारे हैं। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया इसमें से कुछ भी, बट मेरा मन है। और यहाँ पे फाइनली अब कार्तिक कर रहा है बिलिंग सामान की, और उसके बाद ना हम गए ये ट्रेसपास करके एक शोरूम है। भाई 6 महीने से लेकर रहे हैं क्लोजिंग डाउन और सेल लगाते हैं, बट सेल में का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इनके यहाँ ना सेल के बाद भी ना आइटम्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो मेरे को अपने लिए एक ये या कहाँ लॉन्ग जा रही है इसको? पैडेड जैकेट चाहिए, और ये कलर मुझे बहुत पसंद आता है ग्रीन कलर का, तो कार्तिक ने कहा ट्राई करके देख। ऑल्दो दिस वाज फॉर 58 पाउंड्स, बट मुझे ना बहुत जो लाइट मैंने लगी, पहनी मतलब थी ठंड के मतलब हिसाब से ये मैग्नेट नहीं में, वो लगी। हैवी थी तो आई वाज टेलिंग और वो कार्तिक कि यार 60 आई गेस 70 60 या पाउंड्स की थी। 70 पाउंड्स में तो मार्क एंड स्पेंसर में या प्राइमार्क में या न्यू नेक्स्ट में मिल रही थी, तो और 10 पाउंड डाल के मैं अच्छी जैकेट ले लूँ। बट उसने कहा फिर भी हाँ, ट्राई करके देख, मतलब देखने में तो अच्छी लग रही है। ट्राई। इट्स लुकिंग गुड। पता नहीं बॉम्ब होगी भी अंदर से ना कुछ चीज़ें काट तो फाइनली मैंने वो जैकेट नहीं ली और हम घर आ गए, और मैं किचन में सब्जियां वगैरह आई हैं, इनको अनपैक कर रही हूँ। टोमेटोज़ फ्रिज में डाल रही हूँ। और मेरे को ना मतलब पता नहीं कि घर ना फैला हुआ पसंद नहीं है, फटाफट जो भी सामान आ रहा है उनको निकाल के उनको अपनी अपनी जगह पे लगा दो। और अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ अपना सांभर बनाने की। तो मैंने कैरेट्स उठाई हैं, बीन्स उठाई हैं, आलू उठाया है। यार लौकी नहीं मिली, वैसे तो सांभर में लौकी काफ़ी मेन होती है, तो बट आज मैं सांभर में लौकी नहीं डाल पाई क्योंकि लौकी मुझे नहीं मिली। और मैं यूजुअली जो सांभर बनाती हूँ ना वो मैं मूंग की दाल का बनाती हूँ इंस्टेड ऑफ अरहर की दाल का। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो आप मूंग की दाल, जो येलो वाली मूंग की दाल होती है ना विदाउट छिलके वाली, उसका ट्राई करना, वो बहुत यम और बहुत लाइट होती है। मैंने अपने साथ ऐसा ट्राई किया है कि अगर मैं अरहर की दाल का सांभर बनाती हूँ तो हम सबको एसिडिटी हो जाती है, बिकॉज अरहर की दाल तूर की दाल ना हैवी होती है। तो मूंग की दाल का एक बार बना करके देखना, कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता, और बहुत बहुत ज़्यादा यम होती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अब मैं यहाँ पे डोसे का बैटर बना रही हूँ। एक्चुअली रेडी टू ईट डोसे का बैटर होता है जो हमको सुपरमार्केट से मिला था। सो बस मैं उसको ला करके उसमें दही वही डाल के, देखो मेरा ये बैटर तैयार हो गया है। इसको प्रिपेयर करके मैंने रख दिया है, जब खाएंगे तब डोसा फटाफट बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स और दाल एक साथ मिक्स कर दिया कुकर में, बस मैं नमक और हल्दी डाल के इसको सीटी लगाऊंगी। और साइड में कढ़ाई में जो इसका मतलब सांभर का जो मसाला बनता है, टमाटर प्याज और कड़ी पत्ता सांभर मसाला, इन सब का जो है वो मैं हाँ वो मसाला तैयार करूँगी। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। वैसे ना मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई खाना बनाने की, मतलब मैं 1 डेढ़ घंटे में सारा काम कर लेती हूँ सारा। तो ये अभी मैंने अनियंस डाले हैं, कड़ी पत्ता डाला है, टमाटर डाल दिए, मसाला रेडी हो चुका है। और ये मेरा फाइनली यहाँ पे सांभर भी रेडी हो गया है और मेरा आलू का मसाला भी रेडी हो गया डोसे के लिए। फाइनली सारा खाना रेडी हो चुका है, आलू का मसाला, सांभर, डोसे का बैटर। बस जब केशु स्कूल से आएगा तब हम ये सब बना देंगे। और आप देखो मैंने किचन पूरी क्लीन कर दी है, सी पूरा अच्छे से क्लीन है। मुझे ना एक्चुअली बिल्कुल भी किचन गंदा पसंद नहीं है। तो इसमें मेरा आलू का मसाला भी ना ठंडा हो गया, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। आई गॉट डोनट फॉर माई लिटिल बेबी। एंड एक्चुअली केशु के स्कूल से फ़ोन आया था कि वो भाग रहा था एंड 2
चिल्ड्रंस, दे कोलाइड, दे बम्प देयर हेड अगेंस्ट ईच अदर, तो उसके यहाँ पे ऐसे रेड रेड हो गया था. तो दे वर लाइक कि ऑल्दो ही इज़ फाइन बट वी जस्ट थॉट टू इन्फॉर्म यू बिकॉज हल्का हल्का रेड रेड है. अगर अभी ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट अगर कुछ भी लगेगा तो हम उससे कॉल करेंगे. बट आई वांट टू टॉक टू हिज स्कूल पीपल बिकॉज कल भी उसकी एक चिट आई थी कि उसके हाथ पे स्क्रैच एंड ऑल दैट, वो गिर गया था. ऑल्दो केशु का ये प्रॉब्लम है कि जब वो भागता है ना तो वो ऐसे अंधाधुन भागता है. वो अपने सराउंडिंग्स पे बिल्कुल नहीं देखता, और इसलिए जब वो घर में भी इधर उधर भागता है तो आई एम ऑलवेज आफ्टर हिम, केशु 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 केशु. मैं ऐसे करती रहती हूँ कि भाई तू अपने आप को भेड़ मत लेना कहीं पे. और स्कूल में भी, बट स्टिल आई नीड टू आज चेक विद देम कि भाई क्या सिनेरियो है, क्या माजरा है, क्यों इतनी चोट लग रही है बार बार. हफ्ते में एक स्लिप तो आ ही जाती है स्कूल से, यहाँ बैंडेज, कभी यहाँ पे बैंडेज. तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है. प्लस जिनका प्ले एरिया है ना वो थोड़ा सा रफ है. सो बस मुझे डर लगता है कि किसी दिन गिरे और यहाँ गाल वाल पे या चेहरे पे ना लग जाए. दैट्स द ओनली थिंग कंसर्न आया है. अदरवाइज बच्चे तो खेलते कूदते हैं और चोट लगी जाती है. आई एम जस्ट गोना आस्क कार्तिक अभी कि वो एक बार स्कूल में फ़ोन करके एक बार क्रॉस चेक कर ले whether he is fine or not. Only wanted to check if he's doing okay at the moment. If he's doing fine. Okay. 12:30 हो रहे हैं और धूप तो आज निकलेगी नहीं. देख लो आज पूरा क्लाउडी माहौल ही है, बल्कि ओस भी हो रही है. तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करूँगी, फिर मैं 2 घंटे बाद केशु को लेने जाऊँगी. सो आई एम गोना वॉच माई मूवी. तो मैं ना अभी लास्ट 2-4 दिन से ना आई वॉज वॉचिंग लॉस्ट इन ओजी या ओज, क्या बोलेंगे वो भी जो भी है. इट्स एन एनिमेशन सीरीज जिसका सीजन 1 सीजन 2 था. सीजन 1 हमने देख लिया था, सीजन 2 मैं लास्ट 2-3 दिन से देख रही थी एंड आई लव्ड इट. उसके अलावा केशु एक मूवी देख रहा है प्राइम पे, ट्रोल्स करके. इट्स अ वेरी ओल्ड मूवी. तो वो ना मैंने ऐसे चलते फिरते देखी है थोड़ी सी, और उसके ना गाने बड़े अच्छे हैं ना. इट्स अ म्यूजिकल मूवी और बड़े अच्छी लगी मुझे. मुझे ना स्लो मूवीज पसंद नहीं है और उसमें कुछ ना कुछ हो ही रहा है, पर मैं ठीक से देख नहीं पा रही क्योंकि केशु ना बेवकूफ़ों की तरह ऐसे आगे बढ़ा करके ना फिर एक सीन को 50 बार देखता है. तो मुझे आगे और पीछे का कुछ पता ही नहीं है कि क्या है उस मूवी में, क्या होता है, एंड क्या है, शुरुआत क्या है, पता नहीं क्या है. बस वो ऐसे रिमोट लेकर, एक तो उसे प्राइम चलाना आ गया है. यूट्यूब तो हमने भाई टीवी से लिटरली हटाया है बिकॉज वो इतने कार्टून्स देख रहा था कि वो खुद एक कार्टून बनता जा रहा था. तो हमने कार्टून यूट्यूब तो हटा ही दिया टीवी से. अभी प्राइम पे क्या एक मूवी है, एक मूवी को आप एक ही बार देखोगे, लेकिन केशु ने उसका भी मतलब तोड़ सीख लिया है. वो ट्रोल्स पे जाता है मूवी पे और क्लिक करता है और एक पर्टिकुलर लाइक उसको आगे और पीछे बढ़ाना आ चुका है, तो उसको एक वो पर्टिकुलर सीन है जो उसे बहुत पसंद है, सीधे वहाँ ले जाएगा ट्रैक करके, फिर उसको देखेगा और हंसता रहेगा. सो इसलिए मुझे पता नहीं कि उस मूवी में क्या है क्या नहीं है, बट मेरा मन बहुत है. तो मैं वो मूवी देखूँगी और फिर 1.5-2 घंटे के बाद सर को लेने जाएंगे. मेरा खाना पूरा रेडी हो चुका है, आएगा फटाफट से. सांभर बना हुआ है, डोसे का बैटर बन चुका है. जब बनाऊंगी तो उसमें बेकिंग सोडा या इनो कुछ डाल दूंगी खमीर के लिए, और आलू का मसाला बन चुका है. मैं सोच रही थी नारियल की चटनी भी बना लूँ क्या. दही है और मेरे पास डेजिनेटेड कोकोनट भी है और मेरे पास कड़ी पत्ता भी है. आई कैन डू दैट, पर अभी नहीं कर रही, वो तो मैं आने के बाद बना लूँगी फटाफट से. तो चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ और फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ. सो केशु को स्कूल से आने के बाद मैं ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा वो भी ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल, तो वो रह गया. और ये नेक्स्ट डे सैटरडे के सुबह, और ये देख लो ये मेरे शोल्डर्स पर चढ़ के बैठा है, मुझे कैसे से भूत बना रखा है बिल्कुल से. So let mama drink tea. Let mama drink tea because mama is having headache. Mama का सर दबा दे बेटा. थोड़ा सा सर दबा दे मम्मा का. But the horse's head is paining, na? Can you help the horse? You're a kind child. the horse has to go to the horse town to drink some milk in the horse town. Fisher. I wish I'm gonna bring this ball to your mouth. अबे मैंने बाल तोड़ा है, बाल से नहीं खेलते हम. Do you know that? आपको वीडियोस बनाना अच्छा लगता है कृषभ? कृषभ? He's dead. So
सो यहाँ मैं अब आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। सो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज आलू प्याज के पकौड़े, यम्मी यम्मी करारे करारे, और उसके साथ हरे धनिए की चटनी। तो हरा धनिया वगैरह मैं एक दिन पहले सब कुछ ले आई थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट से आज आलू प्याज के पकौड़े बनाए जाए। सैटरडे है, छुट्टी है, तो कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ डिफरेंट सा और कुछ टेस्टी सा मैं बना लेती हूँ। अभी जब मैं ये वॉइस ओवर भी देख रही हूँ तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो ये ब्रेड और ये खाना पीना देख के ना लिटरली मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। एंड गाइस ये ना व्लॉग जो है ना थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि ये व्लॉग इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ 2 डेज़, फ्राइडे और सैटरडे का ये व्लॉग है। तो आई एम सॉरी। तो अगर जब भी आप देखो ना तो तसल्ली से बैठ के, जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो ना, चाहे रात में देखना दिन में देखना, जब भी आपके पास खाली टाइम हो आप तब बैठ के देखना, क्योंकि ये काफ़ी लंबा व्लॉग होने वाला है। सो यहाँ पे मैं फटाफट से ऐसे मैं आलू प्याज के पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आलू ले लिया। ये हम ना रात को आजकल बादाम सोख करके रखते हैं, सुबह सुबह उठ के मैं, कार्तिक, केशु तीनों खाते हैं, बिकॉज इसके बहुत फ़ायदे हैं। और पहले केशु खाता नहीं था, बट अब उसने खाना शुरू कर दिया। सो दैट्स अ गुड थिंग कि वो हेल्दी चीज़ों पे आ रहा है। एंड पता है ऑफ लेट ना उसको ना घर का खाना ज़्यादा पसंद आने लग गया, बिकॉज वो ना स्कूल में लंच करता है बेसिकली। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे दे कॉल लंच और डिनर इन स्कूल। सो वो स्कूल में जो भी खाता है, स्कूल में लंच या डिनर प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब पूरा इंग्लिश फूड होता है। आपको क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब। तो बोर हो गया, तो उसे घर का खाना पसंद आता है। आजा बच्चा। You will study now. Fight. Fight. And the first letter has to be capital. Yes. And you have to write it in cursive. Fight. I is the sound of E. I is the sound of? I. No. I is the sound of? I. IGH. Then? I have to make something wrong. Do you have an eraser with you? Yeah. Please fix it. With an eraser you can fix it, Baba. Join. 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 Yes, very good. Join. सो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करते करते मैं केशु को भी थोड़ा उसके वर्ड्स की, इंग्लिश की, मैथ्स की प्रैक्टिस करा रही थी, बिकॉज अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता तो वो सब भूल जाता है। तो मैं उसको सैटरडे संडे मॉर्निंग में सबसे पहले मैं उसको बोलती हूँ पढ़ ले, उसके बाद तेरे पास पूरा दिन खाली, तुझे जो करना है कर लेना। Air. F भी तो बनाओगे? I'm writing now. Okay, so I did not know that. A-I-R. यहाँ मेरे पकौड़े का मिक्सचर तैयार हो चुका है, और यहाँ मैंने चटनी भी तैयार कर ली है। सो गाइस जब भी आप ये मिक्सचर बनाओ ना, सब बहुत कम पानी डालना, सारे मसाले डाल के ना उसको अच्छे से आटे की तरह केशु के गूंद साथ लेना। ना आजकल मैंने एक नया गेम आविष्कार किया। गेम एक्चुअली नया नहीं है, मेरी मम्मी की करती थी जब हम लोग छोटे थे। तो क्या है ना, ये जैसे रोटी बीच में छोड़ देता है या खाना बीच में छोड़ देता है, तो मैं सोचती अरे केशु, आई एम अ शॉपकीपर एंड आई सेल डिफरेंट पान, सो यू कम टू मी एज अ कस्टमर, और फिर मैं तुमको पान दूंगी, है ना, फिर तुम मुझे मनी देना। तो ये अपने को प्रिंस समझता है, तो कहता है आई एम गिविंग यू नेकलेस, आई एम गिविंग यू डायमंड सो दैट यू बिकम रियली रिच। ओह यू आर सो काइंड। तो इस खेल खेल में पूरा फिनिश कर जाता है। तो वो कहता है आई एम एक्साइटेड फॉर माई पान। सो अभी आज मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने पकौड़ियों का घोल बनाया था। वो देखो, प्याज ने पानी भी छोड़े, इसलिए पानी कम डालते हैं। अगर आपको क्रिस्पी रखना है ना, सो उसको अच्छे से गूंद लो उसमें, एंड फिर उसके बाद, क्योंकि पानी की बहुत कम नीड होती है कम। सो मैं फटाफट ऑयल, ये मेरे पास है, ये डाल के पकौड़ियाँ बनाना शुरू करती हूँ, बिकॉज कभी भी बोल देगा आई एम हंग्री। सो फाइनली मैंने यहाँ पे अपना पहला क्या कहते हैं घाम, मम्मी बोलती है, वो डाल दिया। और ये कितनी क्रिस्पी सुनहरी पकौड़ियाँ मैंने बनाई हैं, बहुत ही यम्मी बनी थी। चटनी का तो बहुत ही अमेजिंग थी। और मेरा जो मसाला बचा था ना, आलू का मसाला डोसे का, उसका मैंने क्या किया ना, उसका मैंने लहसुन, अदरक और प्याज कूट के उसमें मिक्स करके, उसका वड़ा पाव वाला जो वड़ा होता है ना, मैंने वो बना लिया। एंड भाई लिटरली अगर मेरे पास बन होते, चटनी मेरे पास थी, हरी मिर्च मेरे पास थी, तो ये मैं प्रॉपर वड़ा पाव खा सकती थी। पर इनका टेस्ट ये बहुत यम You था। gonna teach me how to? How to drive a car. So are you gonna train me? Ball before you do. Ball before me? Ball before. बाउल क्या होता है? नहीं, you have to say but. But Before you. ball before you have a practice. So क्या कह रहा है ये बॉल you बिफोर? need to bowl. You need to ball before. बॉल क्या होता है? Bowl और अपने bow. Bowl. You say bow. Bowl. क्या होता है? बाउल क्या होता है बेटा? बाउल क्या? What is ball? Tell me how to. Ball is this.
इसे उसको बो बोलते हैं, बो, बो डाउन, down Bow. before you move. ओ So let's हर start. बार गाड़ी चलाने से पहले If you see a car coming, okay, you have to go left. and if I don't see a car coming, then I have to go right, No, if you see a car coming left, okay, then you got to go right. okay, If you see a car coming this way, then you have to go left. okay, And if you see a car coming left, then you got to go right. And then if you see a car coming right, then you got to go that. okay. And can you explain me the same thing in Hindi? Stop saying. क्यों? You need to follow instructions. I'm saying इसको हिंदी में समझा दो, That's what I'm saying. मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ, Tell you. नहीं हिंदी बोलो. You're focused. आप हिंदी में बता दो ना. तो केशु, आई एम सेइंग, मेरे को इंग्लिश समझ नहीं आ रही, आप हिंदी समझा दो ना, हिंदी में समझा दो. So, हिंदी कैसे बोलते हैं? कि अगर गाड़ी सामने से आ रही हो ऐसे बोलो. तो लेफ्ट जाना, अगर गाड़ी राइट, अगर लेफ्ट से आ रही हो तो राइट जाना. ऐसे बोल दो. हिंदी में समझा. like that's that. नहीं, आप बोलो. यू आर माई ट्रेनर, डैड इज नॉट माई ट्रेनर. बोलो अगर गाड़ी गाड़ी सामने से आ रही हो तो लेफ्ट जाना. और अगर लेफ्ट से आ रही हो तो राइट जाना. नहीं, अगर गाड़ी सामने से राइट आ रही हो तो, और अगर सामने से राइट आ रही हो तो लेफ्ट चले जाना. बोलो. तो लेफ्ट चले नहीं, पूरा सेंटेंस बोलो. तो लेफ्ट चले जाना. नहीं, अगर गाड़ी सामने से, ऐसे बोलो. अगर गाड़ी सामने से आ रही हो तो लेफ्ट चले जाना. और अगर सामने से अगर नहीं आ रही हो नहीं आ रही तो स्ट्रेट चले जाना. अगर गाड़ी सामने से नहीं आ रही, बोलो. then go back to that नहीं, line. अगर गाड़ी सामने से नहीं आ रही हो, बोलो. अगर गाड़ी सामने से नहीं आ रही हो तो सीधे चले जाना. नहीं आ रही हो. सीधे कर जाना. ओके, थैंक यू. So ask the teacher and everyone. So you have to put. एक दिन पहले गुरुपूरब था, तो हमारे घर के पास गुरुद्वारा भी है, तो हम गुरुद्वारा गए हैं बाबा जी के दर्शन करने. कुछ हमारे फ्रेंड्स भी आ रहे थे वहाँ पे, तो वी वेंट देयर. बट वहाँ जाने से पहले हमने कहा कि यार पहले ना कुछ मतलब वहाँ पे चढ़ावे के लिए हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीदे, और फिर हम यहाँ पे गुरुद्वारा में आ गए. यहाँ पे शूज़ हमने उतारे और दर्शन करे बाबा जी के. और आप देखो कितना साफ़ सुथरा एंड बहुत पीसफुल था, बहुत ही ज़्यादा. उसके बाद सीधे हम गए लंगर हॉल में. वहाँ पर हमने लंगर खाया. रोटी थी, दाल थी, बैंगन का भरता था, करेले की सब्जी थी, दही बड़े थे, और ये प्याज थी, और मीठे चावल भी थे. पर मैंने मीठे चावल नहीं लिए बिकॉज मुझे मीठे चावल नहीं पसंद है. वहाँ पे बच्चों के तो मज़े आ गए और वो तो अपना खेलने में लग गए. मैंने यहाँ पे खाया और खाने, यार मतलब लंगर का खाना ना लिटरली बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी. लंगर का क्या, आप कहीं भी खाना खाओ अपना अच्छे से मतलब बनाओगे, अगर आप प्रेम से खाना बनाओगे ना तो उसमें स्वाद तो आना ही आना है. यहाँ पे मैंने बच्चों को बड़े अच्छे से इंगेज कर रखा था. कलर्स दे देते, टेबल चेयर बिछाए थे, किड्स वर डूइंग कलरिंग. फिर ये लोग कलर से बोर हो गए और वहाँ पे लोग बहुत ज़ोर से भाग रहे थे. लोग खाना खा रहे थे, तो इनको स्टॉप करने के लिए हमने मोबाइल फ़ोन और वो अपनी रीडिंग कर रही है बैठ के. फिर हम यहाँ पे मास हाइपर मार्केट है, सुपर मार्केट, यहाँ पे आए. हमें फटाफट यहाँ पे 29 पेंस की एक मैगी मिल जाए तो वाई फटाफट मैगी भर ली, क्योंकि कभी कभी रात को से भूख लगती है, तो हमने मैगी वैगी उठा ली. उसके अलावा सब्जी हमारे पास सारी थी, बट मोस्टली मुझे ना मेथी मिल गई, तो मैंने मेथी उठाई. और मेथी के पराठे बनाए और मेथी आलू की सब्जी बनाई. नींबू खत्म हो गया था तो नींबू वगैरह उठाया. बाकी सब्जियाँ हमारे पास सारी थी बिकॉज एक दिन पहले हमने सेंसबरी से स्टॉक भर दिया था. उसके बाद हमने गोलगप्पे उठाए, गोलगप्पे खाने का मन हो रहा था तो हमने गोलगप्पे उठाए और फिर हम वापस आ गए अपने घर में. कैन यू सी लाइटिंग, यहाँ पे क्रिसमस की लाइटिंग्स ऑन हो गई है और बाकी तो 23 तारीख को पूरे शहर में हो जाएंगी. बट कैन यू सी इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. घर आने के बाद मैंने पिया अपने मोगू ड्रिंक जो मैं मास हाइपर मार्केट से लेके आई, और मेरी ये तीसरी बॉटल है. मुझे इतनी अच्छी लगी यार, इसके अंदर ना फ्रूट्स के पीसेस हैं एंड आई लव्ड इट. सो या यही था मेरा फ्राइडे और सैटरडे, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल डिड in our day, in those 2 days. So hope you like the vlog. Please like, subscribe, and thank you so much for watching.